जय मसीह सभी को। जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। क्यों ना हम स्तुति और आराधना में बढ़ने से पहले क्यों ना हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करें। Why don't we close our eyes and pray? Heavenly Father, once again I thank you for this time, Lord. Thank you, O Lord, for your awesome presence that is there with us. Lord, I give each and every one, O Lord God, in your hand. Whoever are watching this video, O Lord God, and who could not make it, O Lord God, I pray that you bless each and everyone's life this Sabbath, O Lord God. And you enable us that we come closer to you and we give our best offering to you, O Lord God. Lord God, your word says, O Lord God, if anything that has to be feared is you alone, O Lord God. अगर भय हमें किसका रखना है तो परमेश्वर सिर्फ तेरा प्रभु जी, बिकॉज तुझ में ही वो सामर्थ्य है प्रभु जी. And we thank you, O Lord God, that you are with us. Thank you once again, O Lord God. Thank you once again for this time. I pray, O Lord God, throughout this service you be with us. In your name I pray. Amen. फिर से जय मसीह सभी को। जय मसीह। मैं उत्तेजना के लिए भजन संहिता 31 से एक वचन पढ़ना चाहूंगा। भजन संहिता में कहता है कि How wonderful are the good things you keep for those who fear you. Everyone knows how good you are. How securely you protect those who trust you. That's the wonderful promise that God has given us, that whoever fears Him and fears nothing else, only God alone, God gives him good things. And we are that blessed people. हम वो आशीषित पाए हुए लोग हैं जो परमेश्वर को जानते हैं और उनका भय रखते हैं. तो क्यों ना मिलकर उस महान परमेश्वर की हम स्तुति और आराधना करें इस गीतों के साथ. Let us all stand and praise His holy name. Let us all sing that our God is good God. Let us all sing together. God is good all the time. We put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. God is good all the time. We put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. If you're walking through the valley and there are shadows all around, do not fear, He will guide you, He will keep you safe and sound. God has promised to never leave you, nor forsake you, and His word is true. God is good all the time. We put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. We were sinners, so unworthy, still for us He chose to die. And that's it, His Holy Spirit, so we can stand and testify that His love is everlasting and His mercy, they will never end. God is good all the time. They put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. And though I may not understand, and though I may not understand all the plans You have for me, my life is in Your hands, and through the eyes of faith I can clearly see God is good all the time. We put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time.
God is good all the time. God is good all the time. God is good all the time. We put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, the light will shine. God is good. God is good all the time. यीशु तो अच्छा है. यीशु तो अच्छा है. यीशु तो अच्छा है. यीशु तो अच्छा है. तू बहुत अच्छा है. यीशु तो अच्छा है. यीशु तो अच्छा है. यीशु तू अच्छा है. तू बहुत अच्छा है. यीशु मेरे लिए आया. यीशु मेरे लिए जिया. तू बहुत अच्छा है. यीशु मेरे लिए आया. यीशु मेरे लिए जिया. तू बहुत अच्छा है. यीशु मेरे लिए आया. यीशु मेरे लिए जिया. तू बहुत अच्छा है. यीशु मेरे लिए मरा. यीशु मेरे लिए जिया. तू बहुत अच्छा है. यीशु अच्छा है. यीशु तू अच्छा है. यीशु तू अच्छा है. यीशु तू अच्छा है. तू बहुत अच्छा है. मेरे पापों को मेरे पापों को तूने क्षमा किया. तू बहुत अच्छा है. मुझे मुक्ति दिलाया. मुझे शांति दिलाया. तू बहुत अच्छा है. मेरे पापों को तूने क्षमा किया. तू बहुत अच्छा है. मुझे मुक्ति दिलाया. मुझे शांति दिलाया. तू बहुत अच्छा है. यीशु तू अच्छा है. यीशु तू अच्छा है. यीशु तू अच्छा है. तू बहुत अच्छा है. चंगा किया. मुझे चंगा दिया. मुझे शक्ति दिया. तू बहुत अच्छा है. मुझे जीवन दिलाया. मुझे खुशियाँ दिलाया. तू बहुत अच्छा है. मुझे चंगा किया. मुझे शक्ति दिया. तू बहुत अच्छा है. मुझे जीवन दिलाया. मुझे खुशियाँ दिलाया. तू बहुत अच्छा है. यीशु तू अच्छा है. यीशु तू अच्छा है. यीशु तू अच्छा है. तू बहुत अच्छा है. यीशु अच्छा है. यीशु तू अच्छा है. यीशु तू अच्छा है. यीशु तू अच्छा है. तू बहुत अच्छा है. बहुत अच्छा है. तू बहुत अच्छा है. तू बहुत अच्छा है. क्यों ना तालियों का भेंट हमारे महान परमेश्वर को. Yes, the Lord God, we want to glorify your name, for magnify your name, for you alone deserve all the glory, O Lord God. Yes, the Lord God, you never leave us, O Lord God. You're always there with us, O Master. We need to only fear you alone, O Lord God. Enable us, O Lord God, to remember you, O Master, and keep your name, O Lord God. Thank you once again, O Lord God, for this time, Lord. I pray, O Master, I pray, O Lord God, let your presence always be there, O Lord God. Let your presence always be there in this place, O Master. I pray, O Lord God, for your awesomeness, O Master. I pray and I thank you for everything that you do, O Lord God. धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, जो आप हमारे जीवन में करते हैं प्रभु जी. उसके लिए परमेश्वर. Once again we thank you, O Lord. Once again we thank you.
Lord says, be courageous and confident. Do not be afraid of them, for your God, your Lord Himself, will be with you. He will not fail you or leave you. तू हियावान और दृढ़ हो, उनसे न डर और न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वह तुझको धोखा न देगा और न छोड़ेगा। जिस तरह परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। कभी कभी हम भूल जाते हैं, पर परमेश्वर हमें कभी नहीं भूलता। तो क्यों ना उस महान परमेश्वर की हम एक साथ मिलकर स्तुति करें। क्यों ना इस जय के गीत से हम उस महान परमेश्वर की बड़ाई करें। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला मैं तेरे साथ हूँ। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला मैं तेरे साथ हूँ। जब मैंने सोचा मेरा संभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। असंभव को संभव करने वाला यीशु मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु मैं तेरे साथ हूँ। हमारा परमेश्वर सदा हमारे साथ है और वो हमें कभी नहीं छोड़ता है। He is always there with us and He never leaves us. So why don't we sing and praise His holy name? क्यों ना हम मिलकर ये गीत गाकर उस महान परमेश्वर की आराधना करें। पवित्र
चंगा करता है, तू अधर्मों को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। यीशु ईश्वरा, तू है मेरा देवता। यीशु ईश्वरा, तू है मेरा देवता। तेरी तारीफ हम करेंगे, तेरी पूजा हम करेंगे, तेरी दर्शन हम करेंगे, तू है मेरा देवता। तू है मेरा देवता। यीशु ईश्वरा, यीशु ईश्वरा, तू है मेरा देवता। यीशु ईश्वरा, तू है मेरा देवता। तेरी तारीफ हम करेंगे, तेरी पूजा हम करेंगे, तेरे दर्शन हम करेंगे, तू है मेरा देवता। चलो एक साथ आग बंद कर भगवान परमेश्वर की आराधना करें। तू है मेरा देवता। तू है मेरा
क्यों ना फिर एक साथ हम कहें, तू है मेरा देवता। फिर से मुंह उठा कर हम कहें, तू है मेरा देवता। परमेश्वर ने इस संसार में अपना एक लौता बेटा को भेजा हमारे लिए, ताकि हम सब खुश रहे। तो हमें किसका डर है जब परमेश्वर हमारे साथ है? When our God is with us, why do we fear of anything else? क्यों हम भय रखते हैं? Why do we fear when our God is with us? Why don't we give ourselves to our holy God and give this commitment? क्यों ना ये आज हम कमिटमेंट दें कि हमें किसी का भी डर नहीं है जब हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। Let us all fear only our living God and give our burdens, everything to Him. हमारे बोझ को हम परमेश्वर की ओर दें, और क्यों ना इस गीत के द्वारा हम हमारे लिए एक कमिटमेंट लें कि अगर हम भय रखें तो सिर्फ हमारा परमेश्वर का ही भय रखें। Why don't we sing this song and lift the name of our Lord? God sent His Son, they call Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to bear my pardon, and empty grave there to prove a Savior lived. Everyone sing, because He lived, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth a living just because He lives. How sweet to hold a newborn baby and feel the pride and joy He gives. But grace is still the calm assurance this I can face uncertain days because He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth a living just because He lives. And then one day
blessed because He lives. Yes, O Lord God, you live, O Lord God, because of which we have been set free, O Lord. Yes, O Lord God, we have been set free, and it's all because of you. प्रभु जी धन्यवाद करते हैं हम परमेश्वर, तू है हमारे साथ, इसके कारण हमें तूने सबसे मुक्त किया है प्रभु जी. We thank you, O Lord God. प्रभु जी हमें सिर्फ एक भय जो आपके प्रति रहे प्रभु जी. Enable us that we keep the reverential fear only towards you, O Lord God. Enable us that we don't fear of anything, O Lord God. Enable us that we don't fear of this disease, this pandemic that is taking place, O Lord God. But enable us that we keep our trust and faith in you alone, O Lord God. We depend on you alone, O Lord God. Once again, I thank you for this time, O Lord God. Once again, I thank you that you are there in our midst, O Lord God. We believe, O Lord God, हमें ये विश्वास है प्रभु जी कि हमने आज आपको हमारा उत्तम भेंट दिया है प्रभु जी, और आपने स्वीकारा है प्रभु जी. Once again, we thank you for this time, O Lord God. We give the whole service, we give our offering, everything in your hand. And we ask all this in your beautiful and precious name, Lord Jesus Christ. Amen. फिर से जय मसीह सभी को. जय मसीह. क्यों ना हम अपनी भेंट की ओर जाए, क्यों ना हम हमारे परमेश्वर के राज के लिए हमारा सबसे उत्तम भेंट दे. Why don't we give our best offering, because our Lord is a generous God, so he wants his people to be generous. So why don't we give our best offering to our Lord? क्यों ना हमारा उत्तम भेंट दे हम. तो भेंट के लिए हम क्यों ना खड़े होकर ये गीत गाए एक साथ. Why don't we sing this song? स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए. हालेलुया स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए. धन्यवाद स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए. हालेलुया स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए. वो अच्छा है, भला है, यीशु अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है. वो अच्छा है, भला है, यीशु अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है. धन्यवाद स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए. हालेलुया स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए. जय मसीह. आए हम अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे. प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, प्रभु आपकी स्तुति आपकी बढ़ाई करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं. आप जीवित और सच्चे परमेश्वर हैं प्रभु. हम सदैव प्रभु आपकी महिमा करते रहेंगे प्रभु. धन्यवाद देते हैं प्रभु इस भेंट के लिए प्रभु. इस भेंट पे प्रभु आपका आशीष रहे प्रभु. इस भेंट को प्रभु आपके राज के लिए प्रभु आप इस्तेमाल करें प्रभु. जो दे प्रभु उन्हें आप आशीषित करें, जो दे नहीं पाए प्रभु उन्हें भी आप आशीषित करें, ताकि प्रभु आपके राज के लिए प्रभु आपके राज के लिए भेंट दे सके प्रभु.
प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे लोगों के लिए प्रभु, शालोम के लोगों के लिए प्रभु, कुछ लोग बीमार है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि सभी को प्रभु आप चंगाई दे प्रभु। प्रभु आपने प्रभु कोड़ों की मार खाई है ताकि हमें प्रभु अच्छी सेहत मिले, हमें चंगाई मिले। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु सभी को आप अच्छी सेहत दे। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इस समय में परमेश्वर ज़्यादा समय प्रभु आपके चरणों में बिताने के लिए सभी को मदद करे। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु हमारे सभी शालोम के लोगों को प्रभु वचनों में आगे बढ़ने के लिए आप मदद करें प्रभु। मैं जीवित आपका वचन ही परमेश्वर जीवन है, आपका वचन जीवित है, जीवित वचन है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हम सभी को प्रभु आपके वचनों पर बढ़ने के लिए मदद कर प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु ये परिस्थिति में परमेश्वर हमारे विश्वास को आप प्रभु बरकरार रखे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे बीच में से कोई भी विश्वास से प्रभु पीछे ना हटे प्रभु, बल्कि प्रभु और विश्वास में आगे बढ़े और हमेशा प्रभु तेरी महिमा करते रहे प्रभु। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस भारत देश के लिए प्रभु, इस भारत देश के सारे मंत्रियों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप सभी को बुद्धि और ज्ञान दे प्रभु, और देश के हित के लिए प्रभु उन्होंने निर्णय लेने के लिए आप उन्हें सहायता करें प्रभु। हम प्रार्थना करते सभी मंत्रियों को प्रभु आपकी स्वर्गीय बुद्धि उन्हें दे प्रभु। परमेश्वर इस देश को चलाने के लिए प्रभु उन्हें आप सहायता करें प्रभु। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु सारे जवानों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु इस समय में प्रभु अपना समय बर्बाद न करते हुए प्रभु तुझ में प्रभु समय बिताने के लिए प्रभु आप उन्हें सहायता करें प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं हमारे सारे बच्चों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, उनके जीवन में आप काम करें प्रभु। आप जीवित परमेश्वर और आप उद्धार करता परमेश्वर ये समझने के लिए प्रभु सभी बच्चों के मन को आप खोले प्रभु। सबके बच्चों को प्रभु आप उनके जीवन में आप काम करें प्रभु, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जिन्हें जॉब नहीं है परमेश्वर उन्हें आप जॉब दे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कई लोगों की प्रभु अभी भी प्रभु आमदनी नहीं है परमेश्वर, उन्हें आप संभाले प्रभु। जैसे प्रभु आपने अपने लोगों को प्रभु जैसे प्रभु आपने मन्ना दिया था परमेश्वर, उसी तरह प्रभु आज प्रभु आप प्रभु सभी को प्रभु उनके हर एक जरूरतों को आप पूरा करें प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं महान परमेश्वर, जब भी प्रभु हम आपको पुकारते हैं प्रभु आप दौड़ चले आते हैं प्रभु, और हमारी प्रार्थनाओं को आप सुनते हैं प्रभु। हम पर दया कर प्रभु, और धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने अभी तक प्रभु हमें प्रभु अच्छी रीति से चलाया है प्रभु। विश्वास करते हैं कि आगे भी प्रभु हमारे साथ आप रहेंगे प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु। और एक प्रार्थना हम करते हैं प्रभु आपके प्रभु खास करके प्रभु जो एजुकेशन प्रभु जो बच्चों के लिए प्रभु ऑनलाइन शुरू है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कई पेरेंट्स के पास प्रभु मोबाइल नहीं है प्रभु, जो ऑनलाइन टेक्नोलॉजी परमेश्वर पेरेंट्स को पता नहीं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु सभी को प्रभु इसमें आप सहायता करें प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप उन्हें मदद करें प्रभु, आपकी स्तुति आपकी महिमा करते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, प्रार्थना करते हैं प्रभु वचन के लिए प्रभु, जो पास्टर वचन लेके आएंगे प्रभु उस वचन के द्वारा हमसे बातें करें प्रभु। उस प्रभु पास्टर के द्वारा वचन के द्वारा हमसे बातें करें प्रभु, हमारे आत्मिक कानों को खोले ताकि तेरी वाणी को हम सुन सके प्रभु। और प्रभु हमें प्रार्थना करता हूँ प्रभु वचन पर चलने के लिए प्रभु हमें मदद कर प्रभु। इस सेनाधीश परमेश्वर आपका प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। Praise the Lord, church. जय मसीह कलीसिया। What a joy again to be with each one of you in the presence of the Lord. फिर से एक बार परमेश्वर के भवन में आपके सबके साथ होने खुशी की बात है हम सबको। It's a joy to study the Word of God together. ये बहुत ही खुशी की बात है परमेश्वर के वचन से एक साथ में अध्ययन करना। And we thank God that God has been so good to us even during this time of difficulties. हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर हम सबसे अच्छा रहा और अच्छा है इस मुसीबत के दिनों में भी। We are in the middle of October. और हम अक्टूबर के बीचों बीच में हैं। And we have no clarity about how things are going to go. और हम ये भी नहीं जानते कि आगे क्या होने वाला है। But we do know that God is with us. पर हम ये जरूर जानते कि परमेश्वर हमारे साथ है। And God will keep each one of us and fulfill all our needs. और परमेश्वर हम सब के साथ रहेगा और हमारे हर एक जरूरत पूरा करेगा। Before we look into the word, let's bow our heads and
ask God to touch us with His word and lead us now as we study. और परमेश्वर के वचन में जाने के पहले हम अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि वो हमसे बातचीत करे उसके वचन के द्वारा। So let's bow our heads and let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Our Father God, we thank you for the opportunity to worship together. पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं एक साथ में फिर से मौका दिया हम आपकी आराधना कर सकें। We thank you for those who have led us in worship and glorifying your name and giving to you our praise. हम धन्यवाद देते हैं आज के आराधना स्तुति दल के लिए जिन्होंने आराधना स्तुति में हमारे अगुवाई की और आपके करीब आने में मदद किया है। We want to thank you for Sunday after Sunday you bless us with your presence. हम धन्यवाद देते हैं हर एक रविवार को आपके वचन के द्वारा आप हमें आशीषित करते हैं। And now we pray as we open your word that you will open our understanding. और हमारी यही प्रार्थना है जैसे हम आपके वचन को खोलते हैं आप हमसे बातचीत करें। And we pray, Lord, that you would speak to us today again. और हमारी यही प्रार्थना है परमेश्वर आप हमसे बातचीत करिए। We ask for you, Holy Spirit, to open our understanding to receive your word this पवित्र morning. आत्मा हम आपसे मांगते हैं कि आप हमारे आँखों को खोलिए ताकि हम आपके वचन को और आपके आवाज को सुन सकें। Bless your word to us again. आपके वचन आशीषित करिए। Be with us in this time that we spend together. हमारे साथ रहिए जैसे हम समय बिताते हैं। And speak to us from your word. हमसे बात करेंगे। Pray this in Jesus' ये name. प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। 2 weeks back we looked at the subject of how God wants us to respond to what He does in our lives. 2 हफ्ता पहले हमने ये देखा है कि किस तरह से परमेश्वर जो कुछ भी हमारे जीवन में करते हैं उसका उत्तर हमें किस तरह से देना है। And this week I want to continue with that. और आज ये सप्ताह हम उसका ही आगे देखना चाहते हैं। And what I want us to look at today, I have titled it as being of use in this world. और आज जो हम देखना चाहते हैं उसका शीर्षक मैंने इस तरह दिया है, इस दुनिया में हमारा उपयोग किस तरह से किया जाना। Lending a hand to help somebody else. किसी की मदद में हाथ बढ़ाना। And we will look from scripture of how scripture teaches us of how we, as long as we are in this world, how we can be used by God. और वचन से हम देखेंगे जब तक परमेश्वर ने हमें इस धरती पे रखा है हम किस तरह से एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। So let's turn in scripture and study at this time. तो आइए हम वचन की ओर बढ़े और देखिए वचन से क्या हमें बताता है। Let's start with Matthew chapter 5 and verse 16. मत्ती उसका 5वां अध्याय 16वां वचन हम देखते हैं। And this is what Jesus told the people. He said, let your light so shine before men that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. और यही यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा है, तुम्हारा प्रकाश मनुष्य के सम्मुख इस प्रकार चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है महिमा करें। So the scripture says that our light should shine before men in front of others. वचन कहता है कि हमारा जीवन दूसरों के सन्मुख चमके। Now, how will that happen? और ये किस तरह से हो सकता है? The scripture says that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. और वचन कहता है कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता जो कि स्वर्ग में है उसकी महिमा करें। Let's look at one more scripture. और एक वचन की ओर हम देखेंगे। That is 1 Peter chapter 2. और वो हम देखते हैं पहला पत्रस उसका 2रा अध्याय। And we'll read verse 12. और हम 12वां वचन को पढ़ेंगे। This is what Peter writes. Peter says, maintain good conduct among the Gentiles, so that in case they speak against you as wrongdoers, they may see your good works and glorify God on the day of visitation. पत्रस यहाँ पे लिखता है 12वां वचन में, अन्य जातियों के मध्य अपना चाल चलन उत्तम बनाए रखो, जिससे वे जिन बातों में कुकर्मी कहकर तुम्हारी निंदा करते हैं
उन्हीं बातों में तुम्हारे भले कामों को देखकर न्याय के दिन परमेश्वर की महिमा करें। Now, all of us live among unbelievers, हम सब लोग जो कि अन्य विश्वासियों के बीच में जी रहे हैं, and they may say bad things about us because of who we are. और हो सकता है कभी कभी वो हमारे लिए बुरी बातों का उच्चारण करें। But the scripture here, Peter writes and he says, they may see your good deeds and glorify God on the day of visitation. पत्रस यहाँ कहता है कि अन्य जाति के मध्य में हम रहते हुए हमारे अच्छे कामों को देखकर वो न्याय के दिन परमेश्वर की महिमा करें। Now, this is what the word of God challenges us to do. और यही परमेश्वर के वचन चुनौती देता है कि हम रोज बरोज करें। We are living in the middle of people who do not believe in the living God. हम ऐसे लोगों के बीच में अपने जीवन यापन करें जो सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते हैं। And we are required to shine as lights by doing good works among them. और हमें ये चुनौती दिया है कि हम उन लोगों के बीच में अच्छे कर्मों के द्वारा परमेश्वर की महिमा को दिखा सके। We need to be examples, models to them. और हम उनके बीच में एक उदाहरण, एक मॉडल के समान जीना है। Now, there are 5 passages we're going to look at. और हम 5 ऐसे बातों को हम देखेंगे। And through those 5 scripture passages, we will study 5 different things on how we can be of use in this world. और उन 5 अध्याय या 5 बातों से परमेश्वर के वचन से हम आज सीखेंगे क्या हम अपने जीवन में उसका लागू किस तरह से कर सकते हैं। The first one is in Mark chapter 10. पहला जो हम देखते हैं वो पाया जाता है मरकुस की उसका 10वां अध्याय में। Now, the whole passage is from verse 32 up till verse 45. जो पूरा अध्याय जो है 33 से 45 तक। We will only read a few verses over there. और हम कुछ ही वचन को पढ़ेंगे। So first of all, this passage, Jesus talks about how Jesus came to serve. और इस अध्याय में हम देखते हैं कि यीशु मसीह कहता है कि वो किस लिए हमारे जीवन में या इस धरती में आया है। Now, verses 33 and 34 is what we'll read first. और 33 और 34 वचन हम पहले पढ़ेंगे। This is what it says. And saying, behold, we are going up to Jerusalem, and the Son of Man will be delivered to the chief priests and the scribes, and they will condemn him to death and deliver him to the Gentiles, and they will mock him and spit upon him and scourge him and kill him, and after 3 days he will rise. मरकुस 10:33 में ऐसा लिखा है, देखो हम यरूशलेम जा रहे हैं और मनुष्य का पुत्र मुख्य याजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा और वे उसे प्राण दंड के योग्य ठहराकर गैर यहूदियों को सौंपेंगे और वे उसका उपहास करेंगे, उस पर थूकेंगे, कोड़े मारेंगे और मार डालेंगे और 3 दिन के पश्चात वह पुनः जी उठेगा। Now, secondly, we will read from verse 42 up till verse 45. और दूसरा हिस्सा हम पढ़ेंगे 42 से 45 तक। This is what it says. And Jesus called them to him, that is his disciples, and said to them, know those who are supposed to rule over the Gentiles, lord it over them, and their great men exercise authority over them. But it shall not be so among you. But whoever would be great among you must be your servant, and whoever would be first among you must be slave of all. For the Son of Man also came not to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many. 42 से 45 तक ऐसा लिखा है। अतः यीशु ने उनको पास बुलाकर उनसे कहा, मतलब उनके चेलों से, तुम जानते हो कि जो गैर यहूदियों के अधिकारी समझे जाते हैं वे उन पर प्रभुता करते हैं और उनमें जो बड़े हैं उन पर अधिकार जताते हैं, परंतु मैं तुमसे ऐसा नहीं है, वरन जो कोई तुम में बड़ा बनना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहे वह सबका दास बने।
क्योंकि मनुष्य का पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं वरन सेवा करने और बहुतों की फिरौती के मूल्य में अपना प्राण देने आया। Now, whatever Jesus taught, he first did it in his life. और जो कुछ भी प्रभु यीशु ने सिखाया है उन्होंने अपने जीवन में वो लागू किया है। Now, here, if you look at this passage, the first two verses that we read, he's actually telling his disciples about the death and the kind of suffering he was going to go through. और पहले हिस्से में अगर हम देखते हैं वो अपने चेलों से कहते हैं वो किस तरह से के मृत्यु में मरने वाले हैं और पुनरुत्थान हो उठेंगे। Now, James and John, who were two of his disciples, they had some other thing to talk to him about. और जेम्स और यूहन्ना जो उनके दोनों चेले और दूसरों बातों को बताने का था यीशु मसीह से। So they came to Jesus and they wanted places of position in the kingdom of God's kingdom. और याकूब और यूहन्ना जो चाहते थे कि परमेश्वर के राज्य में उनका क्या स्थान होना है। Now Jesus had a long discussion with them. और यीशु मसीह उन दोनों के साथ काफी लंबा वार्तालाप किया है। But finally this is what he said. और आखिर में यही सारांश वो कहता है। He said it is more important to serve. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम दूसरों की सेवा करें। Now when you look at Jesus' own life, for him it meant giving his life for us, for our sins. अगर हम यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं, यीशु मसीह के लिए उनका जीवन दूसरों के लिए निछावर करना वही उनका उद्देश्य था। That's why he said in verse 43, he said, whoever would be great among you must be your servant. इसीलिए 43वां वचन में वो कहता है, वरन जो कोई तुम में बड़ा बनेगा वह तुम्हारा सेवक बने। And in verse 45 he said that the Son of Man, that is Jesus himself, did not come to be served, but he came to serve. और 45वां वचन में कहता है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं वरन सेवा करने आया है। Now Jesus service was the key. प्रभु यीशु मसीह के लिए जो सेवा करना वही सबसे बड़ा मुद्दा था। And now he calls you and me to serve. और आज वो आपको और मुझे वही चुनौती देता है सेवा करने का। So the first lesson that we have today, तो पहला लेसन या शिक्षा हम जो सीखते हैं, serve others because of what Jesus did for us. दूसरों की सेवा करो क्योंकि यीशु मसीह भी यही हमारे लिए किया है। Our example is Jesus Christ. और हमारा जो उदाहरण है वो प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। He himself did it for us. और ये प्रभु यीशु स्वयं वही किया है। And as a part of his service, he gave his life so that you and I can come into the kingdom of God. और उनकी जो सेवा का वही हिस्सा था, उन्होंने अपना जीवन का बलिदान किया ताकि आप और हम परमेश्वर के उस सिंहासन के पास आ सके, उनके राज्य में प्रवेश कर सके। So you and I are called to serve others because of what Jesus did for us. और आप और मुझे यही चुनौती मिलता है कि जो प्रभु यीशु ने हमारे लिए किया है। So second thing that we need to look at. दूसरी बात जो हम देखते हैं, I want us to look at the attitude of giving to the poor. और हम ये देखना चाहते हैं कि दूसरों की मदद करने के लिए, जो देने के लिए हमारा जो स्वभाव या मनोवृत्ति होनी चाहिए। Now turn with me to Deuteronomy chapter 15. और मेरे साथ आइए व्यवस्था विवरण के 15 अध्याय की ओर देखेंगे। So Deuteronomy chapter 15, again we will read a few verses there. और व्यवस्था विवरण के 15 अध्याय के फिर से हम लोग कुछ ही वचन को पढ़ेंगे। Verse 7 and 8 is what we'll read first. वचन 7 और 8 हम पहले पढ़ेंगे। It says, if there is among you a poor man, one of your brethren, in any of your towns,
within your land which the Lord your God gives you, you shall not harden your heart or shut your hand against your poor brother, but you shall open your hand to him and lend him sufficient for his need, whatever it may be. व्यवस्था विवरण 15, 7 और 8 वचन में ऐसे लिखा है, जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसके किसी फाटक के भीतर यदि तेरे भाइयों में से कोई तेरे पास दरिद्र हो, तो अपने उस दरिद्र भाई के लिए ना तो अपना हृदय कठोर करना और ना तो अपनी मुट्ठी कड़ी करना। जिस वस्तु की घटी उसको हो, उसका जितना प्रयोजन हो उतना अवश्य अपने हाथ से ढीला करके उसको उधार देना। Then we'll read verse 10. और हम 10वां वचन फिर देखेंगे। It says, you shall give to him freely, and your heart shall not be grudging when you give to him, because for this the Lord your God will bless you in all your work and in all that you undertake. 10वां वचन में ऐसे लिखा है, तू उसको अवश्य देना और उसे देते समय तेरे मन को बुरा न लगे, क्योंकि इसी बात के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में जिनमें तू अपना हाथ लगाएगा तुझे आशीष देगा। Now there are few things that are noted here in the law that was given to the people of Israel about giving. और कुछ बातें मैंने यहाँ रखा है जो कि परमेश्वर ने यहूदी लोगों को के सामने रखा था। The first thing the law says, don't harden your heart. सबसे पहला जो कानून परमेश्वर या मुद्दा परमेश्वर रखता है कि तू अपने मन को कठोर नहीं करना। Don't allow your heart to be hardened when it comes to giving. तू अपने मन को कठोर मत करना जब तुझे कुछ देने के लिए हाथ बढ़ाना है। Secondly, he says, open your hand to the poor. और दूसरी बात वो कहता है अपने मुट्ठी को खोल गरीबों को या दरिद्रों को देने के लिए। Don't hold your fist in. और तू अपना मुट्ठी को कड़क करके मत रखना, बंद करके मत रखना। He says, open your hand to the poor. और वो कहता है कि तू अपने मुट्ठी को खोल ताकि दरिद्रों को या गरीब को दे सके। Thirdly, he says, lend him sufficient for his need. और तीसरी बात वो कहता है कि उस दरिद्र को तू उतना दे जितना उसकी जरूरत है। Don't give him less, don't give him more, give him as much as he needs. उसे कम मत दे, ज्यादा मत दे, उतना ही दे जितना उस इंसान को जरूरत है। Next he says, give to him freely. और उसके बाद वो कहता है उसे बिना हिचकिचाए, बिना कुछ अपेक्षा करते हुए दे। Don't charge interest. और उसके लिए उसको कुछ ब्याज मत ले। Give to him freely. और उसे फ्रीली दे दे और कुछ बिना उसके कुछ ब्याज लिए। Next he says, your heart shall not be grudging when you give. और वो कहता है कि तेरा हृदय जब तू देता है और उसके विरुद्ध तू कुछ सोच के या बुरा रख के मत देना तेरे मन में। Now he says, if your attitude of giving is like this, अगर तुम्हारा मनोवृत्ति उस तरह है, तुम देते हो, then the scripture there says God will bless you. तो वचन कहता है कि परमेश्वर आपको आशीष देगा। I will ask you when you have the time to look at that scripture portion again. और जब आपको समय मिलता है आप उस अंश को, परमेश्वर के वचन को फिर से आप देखें। And understand the attitude that we need to have towards the poor. और हमारी मनोवृत्ति, हमारे स्वभाव वो होना चाहिए गरीबों के या दरिद्रों के लिए। And the question for us is, do we have that kind of an attitude? और प्रश्न हमारे लिए यही आज रहता है कि क्या हमारे भी मनोवृत्ति वही है, क्या हमारे बीच में जो गरीब है या दरिद्र है। The second lesson I want to leave with you on that is, have a good attitude when you lend a hand. दूसरा मुद्दा जो हम सीखते हैं यहाँ पर, किसी की मदद करते वक्त अच्छा मनोवृत्ति रखें। Have a good attitude. अच्छा मनोवृत्ति And रखें God will bless you. और तो ही परमेश्वर आपको आशीष देगा। The third thing we need to look at is
use what you have. तीसरी बात जो हमें देखना है, जो आपके पास है उसी का आप उपयोग करें। For that, I want you to turn with me to the Gospel of John उसके लिए हम यूहन्ना रचित सुसमाचार की ओर देखेंगे and turn with me to chapter 6. और उसके लिए हम देखेंगे यूहन्ना उसका 6वां अध्याय। Now, it's a long passage, so we will not read the whole thing. और ये लंबा अध्याय है, हम पूरा अध्याय को नहीं देखेंगे। But the story here is of Jesus feeding 5,000 men and others. और कहानी यहाँ पर ऐसा है, यीशु मसीह 5,000 लोगों को और दूसरों को भी खिलाते हैं। Jesus was teaching these people, यीशु मसीह उन्हें सिखा रहे थे and they had been with him for a long time. और वे लोग जो यीशु मसीह के साथ काफी देर तक रहे। And Jesus realized that all of them would have been hungry. और यीशु मसीह ने समझा कि सब लोग शायद भूखे होंगे। And so Jesus had the challenge of feeding a large group of people. और यीशु मसीह के सामने ये चुनौती था कि बड़ी संख्या में जो लोग थे उन्हें खिलाने के लिए। How many people were there? कितने लोग थे वहाँ पर? If you look at verse 10, और अगर हम 10वां वचन को देखते हैं, it says that I'll read that verse. Jesus said, "Make the people sit down." Now there was as much grass in the place, so the men sat down, in number about 5,000. और वचन यहाँ पर लिखा है 10वां, यीशु ने कहा, लोगों को बैठा दो। उस स्थान पर बहुत घास थी, इसलिए पुरुष जो गिनती में लगभग 5,000 थे बैठ गए। Now there were 5,000 men. और 5,000 पुरुष थे। Now probably there were also equal number of women. और हो सकता है उसी संख्या में और औरतें भी वहाँ पर होंगी। There could have been children also. और उनके साथ बच्चे भी होंगे। And they did not have enough resources to feed such a large crowd. और उनके पास उतना साधन नहीं था क्या 5,000 से भी ज्यादा लोगों को खिला सके। Yet there was a need to feed them. और फिर भी उन लोगों को खिलाना जरूरी था। Now there were two problems. और वहाँ पर 2 ऐसे समस्या थी। First of all, what would it cost? और सबसे पहले कि उसका क्या कीमत होगा। So look at verse 7. और उसके लिए हम 7वां वचन को देखते हैं। Philip answered him, 200 denarii would not buy enough bread for each of them to get a little. फिलिपुस यहाँ पे कहता है 7वां वचन में, फिलिपुस ने उत्तर दिया, 200 दिनार की भी रोटियां उसके लिए पर्याप्त न होगी कि प्रत्येक को थोड़ी थोड़ी मिल सके। Now they say that 1 denarii was equal to 1 day's work or pay that a person got. और ऐसा कहा जाता है एक दिनार एक दिन का जो मजूरी होता है उतना एक इंसान को मिलता था। So if you're talking about one person's income, अगर आप कहते हैं कि एक मनुष्य का मजदूरी, that means to feed that many people you would need 200 days of work. और इसका मतलब इतने लोगों को खिलाने के लिए 200 दिन का जो काम की मजदूरी एक इंसान को मिलता है उतना होता है। Which simply means about 7 months of salary. और इसका मतलब ये होता है 7 महीने का जो पगार, which is a lot of money. और जो कि बहुत सा पैसा है। There's a second problem. और उनका ये दूसरा समस्या था, how are we going to buy the bread? और किस तरह से हम उस रोटी को खरीदेंगे। Because they were far away along the seaside. और क्योंकि वो शहर से काफी दूर समुद्र के किनारे में थे। And they may have to go into the city and buy some food and all of that. और हो सकता था वहाँ से वो शहर जाने के लिए काफी दूर था। So what were they supposed to do? तो उन्हें क्या करना था। Now come to verse 9. और उसके लिए हम 9वें वचन को देखेंगे। Andrew, that is Simon's brother, brings a small boy to Jesus. अंद्रियस जो कि साइमन पतरस का जो भाई था, छोटा सा एक लड़का था, उसको यीशु मसीह के पास लेके आता है। And this is what he says in verse 9. और 9वें वचन में वो यह कहता है, There is a lad here who has 5 barley loaves and 2 fish, but what are they among so many? और 9वां वचन में वो यही कहता है, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां है,
परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या है? Now that's all they had. उनके पास सिर्फ उतना ही था, 5 loaves of bread and 2 fishes. 5 रोटियां और 2 मछली, That's all they had. वही उनके पास था। And there were maybe about 10,000 people also. और हो सकता है कुल मिलाकर 10,000 के लोग होंगे। How will that much be enough for all? और उन सब लोगों के लिए वो कैसे हो सकता, परिपूर्ण हो सकता था? What did Jesus do? यीशु मसीह ने क्या किया? The scriptures tell us that Jesus used what he had at that time. वचन हमें यही सिखाता कि यीशु मसीह ने उनके पास जो कुछ था उसका ही उपयोग किया। And the scriptures tell us that everybody had enough to eat. और वचन हमें यही बताता है कि सबने पेट भर कर खाया। How do we know that? हम उसको किस तरह से जानते हैं? Look at verse 11. और 11वां वचन में वो लिखा है, It says, Jesus then took the loaves, and when he had given thanks, he distributed them to those who were seated. So also the fish, as much as they wanted. And verse 12, and when they had eaten their fill, he told his disciples, gather up the fragments left over, that nothing may be lost. So they gathered them up and filled 12 baskets with fragments from the 5 barley loaves left by those who had eaten. 11वां वचन में ऐसा लिखा है और 12वां में, तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके उन्हें जो बैठे थे बांट दी। उसी तरह मछलियों को भी जितनी वे चाहते थे बांट दी। जब वे तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़ों को बटोर लो कि कुछ भी नष्ट न हो। इसलिए उन्होंने उसे बटोरा और जो कि 5 रोटियों के टुकड़ों से जो खाने वालों से बच गए थे 12 टोकरियां भरी। So all of them had as much as they wanted. तो सब ने जितना उनको चाहा था पेट भर के खाया। And after they finished eating everything, there were 12 baskets left. और सब कुछ तृप्त होके खाने के बाद 12 टोकरियां जो कि उन टुकड़ों से भर गया। So what is the lesson for us? तो हमारे लिए हम क्या सीखते हैं? The lesson is very simple. हमारे जो लेसन जो सीखना है बहुत ही सरल है। Use what you have when you have to lend a hand to others. आपके पास जो कुछ भी हो उसी से आप उपयोग करें दूसरों की मदद के लिए। Don't worry about what you don't have. वो मत सोचे कि जो आपके पास नहीं है। But whatever you have, use that. जो कुछ आपके पास परमेश्वर ने दिया है उसी का आप उपयोग करें। The 4th thing. और चौथी बात हम सीखते हैं, Ask God what you need. परमेश्वर से मांगिए जिसका आपकी जरूरत है। Now here again I want to take you to a long passage which is in 1 Kings. और इसके लिए भी हम एक लंबा अध्याय को देखेंगे जो कि पहला राजा में है। 1 Kings chapter 17. पहला राजा उसका 17 अध्याय। And the story is there from verse 1 up till verse 16. और जो कहानी हम देखते हैं यहाँ पर 1 से 16 वचन तक है। We will not read the whole thing. हम पूरा अध्याय को नहीं पढ़ेंगे। But you know the story. आप उस कहानी को शायद जानते हैं। There was a famine. वहाँ पर एक बार जो कि फैमिन होता है। And there was no food. और वहाँ पर कुछ खाना नहीं था। And what God tells Elijah is to go and live with a widow. और तब परमेश्वर जब अकाल पड़ता है उस अकाल में परमेश्वर एलिया को कहता है कि एक विधवा के घर जाके रहने के लिए। And this lady did not have much. और ये जो औरत थी उसके पास उतना कुछ नहीं था। But she was eventually willing to give it to him. और जो कुछ था वो एलिया को देने के लिए तैयार थी। Come with me to verse 15. और मेरे साथ 15वां वचन की ओर चलिए। I'll read verse 15 and 16. और मैं 15 और 16 वचन को पढ़ूंगा। And she went and did as Elijah said, and she said, and she and he and her household ate for many days. The jar of meal was not spent, neither did the cruse of oil fail,
according to the word of the Lord which he spoke by Elijah. 15 और 16 वचन में से लिखा है, तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। यहोवा के वचन के अनुसार जो कुछ उसने एलिया के द्वारा कहा था, न तो उस घड़े का मैदा चुका और न उस कुप्पी का तेल घट गया। Now, she did not know how to deal with that situation. और वो औरत नहीं जानती थी किस तरह से उस समस्या का वो समाधान कर She asked Elijah, what should I be doing? और उन्होंने एलिया को कहा, मुझे क्या करना है? And Elijah told her what to do. और एलिया ने कहा है कि क्या करना है। And so the scriptures tell us what we read. She went and did as Elijah told her. और वचन हमें क्या आता है कि एलिया ने जो कुछ कहा है उसके अनुसार उस स्त्री ने किया। And because of that, the jar of meal was not spent, neither did the cruse of oil fail. और उसके कारण उस औरत का जो घड़ा था, उसका मैदा और उसके बर्तन का जो तेल था वो खत्म नहीं हुआ। And the scripture adds that line at the end of verse 16. It says, according to the word of the Lord which he had spoken by Elijah. और वचन हमें यही बताता है, यहोवा के वचन के अनुसार जो कुछ उसने एलिया के द्वारा कहा था। Now, God will give when we ask him. अब परमेश्वर हमें जरूर देगा जब हम उससे मांगेंगे। We need to trust him. और हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है। If we see a need अगर हम कुछ जरूरत को देखते हैं, and we do not have enough, अगर हमारे पास उतना नहीं है, we need to ask God, तो हमें परमेश्वर से मांगना है। and God will provide. परमेश्वर जरूर उस जरूरत को पूरा करेगा। And when you see the story, that is one thing that comes out very strongly. और जब हम उस कहानी को देखते हैं, ये बात हमें जरूर से हमें पता चलता है That God is the one who will give what we need. परमेश्वर ही वो है, हमें वो देता है जिसकी हमें जरूरत है। So the lesson for us over there तो हमारे लिए यहाँ पर जो सीखना है is that ask God for what you need to lend a hand. आपके पास जो कुछ भी है परमेश्वर से मांगिए ताकि वो जरूरत को पूरा करेगा। So ask God. तो परमेश्वर से मांगिए। Don't sit back and say, no, I don't have anything, so I cannot do. तो ऐसा मत कहिए कि आप बैठे रहे, नहीं मेरे पास तो नहीं है और मैं कुछ नहीं मदद कर सकता। But you ask God and he will help you. आप परमेश्वर से मांगिए तो परमेश्वर जरूर आपको मदद करेगा। The fifth and the last thing that I want us to look at, पांचवा और जो आखिरी का हम जो आपको देखना चाहते हैं, that is give in secret. जो कुछ हम देते हैं वो गुप्त में दे। Now for that you turn with me to Matthew chapter 6. और उसके लिए फिर से हम लोग मत्ती के 6वां अध्याय की ओर जाएंगे And we'll read verse 1 to 4. और वचन 1 से 4 तक हम देखेंगे। Matthew chapter 6 verse 1 to 4 says this, beware of practicing your piety before men in order to be seen by them, for then you will have no reward from your Father who is in heaven. Thus when you give alms, sound no trumpet before you, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may be praised by men. Truly I say to you, they have received their reward. But when you give alms, do not let your left hand know what your right hand is doing, so that your alms may be in secret, and your Father who sees in secret will reward you. मैं मत्ती का 6वां अध्याय 1 से 4, सावधान, तुम अपनी धार्मिकता के कार्य मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं करो, अन्यथा अपने स्वर्गीय पिता से कोई प्रतिफल प्राप्त न करोगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरंत ही मत बजवा, जैसे पाखंडी लोग सभाओं और गलियों में करते हैं कि लोग उसका सम्मान करें। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पूर्ण रूप से पा चुके हैं। परंतु जब तू दान करे तो तेरा बायां हाथ जानने न पाए कि तेरा दाहिना हाथ क्या कर रहा है, जिससे तेरा दान गुप्त रहे और तेरा पिता जो गुप्त में देखता है उसे प्रतिफल देगा।
Now, in a sense, this is like the warning section. और जैसा कि ये हमारे लिए एक सावधान चेतावनी है, It is what we should not do. और ये ऐसी चेतावनी है जिससे हमें नहीं करना है, सावधान रहना है। Verse 1 he says, पहला वचन में वो कहता है, do not do anything to show people. तुम इसके लिए किसी को, मनुष्य को दिखाने के लिए ना करो। Don't do it so that you'll be seen by people that you are doing these things. तुम अपने धार्मिकता के कार्य मनुष्य को दिखाने के लिए ना करो। And the scripture goes on to tell us that there is no reward for those who do it to show men. और उसके लिए वचन हमें बताता है, उसके लिए हमें कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा जो मनुष्य को दिखाने के लिए करते हैं। The scriptures teach us that we should be those who are willing to get involved in the lives of others. वचन हमें बताता है हम वैसे व्यक्ति बने जो कि दूसरों के जीवन में कुछ कर सके, मदद कर सके, ऐसा बने। But we do not need to be those people who will show and let people know that they are doing whatever they are. और हमें वैसे व्यक्ति नहीं बनना चाहिए अपने धार्मिकता के कार्य मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, जो कि दूसरों को दिखाने के लिए। So how are we supposed to do it? तो हमें कैसे करना चाहिए? Look at verse 4. और चौथा वचन में उसके लिए बताता है हमें, He says so that your alms may be in secret. वो चौथा वचन कैसा है, जिससे तेरा दान गुप्त रहे। Give in secret is what he is telling us. दो जो कि गुप्तपन में है। And because he says the next line, your father who sees in secret, he will reward you. क्योंकि तुम्हारे पिता जो गुप्त में देखता है वही तुम्हारे, उसके लिए तुम्हें प्रतिफल देगा। The reward that we need to look for is not from people. जो हमें प्रतिफल मिलना है वो हमें मनुष्य से नहीं, The reward that we are seeking is from God. जो प्रतिफल हम खोज रहे हैं वो सिर्फ परमेश्वर ही से। We need to be those who will give in secret, not in front of a lot of people. और हम वैसे इंसान बनना चाहिए जो कि मनुष्य को दिखावे के लिए नहीं, परंतु गुप्तपन में परमेश्वर को दिखाने के लिए। Let's look at one more verse which talks about this. और एक वचन की ओर हम देखेंगे जो इसके बारे में हमें बताती है। That is Colossians chapter 3 and verse 22 and 23. और कोलोसियों के उसका तीसरा अध्याय 22 और 23 वचन में कहता है। This is what it writes. और यहाँ पर ऐसे लिखा है, Slaves, obey in everything those who are your earthly masters, not with eye service as men pleasers, but in singleness of heart, fearing the Lord. Whatever your task, work heartily as serving the Lord, not men. कलुसियों उसका तीसरा अध्याय 22 और 23 वचन में लिखा है, हे दासो, मनुष्य को प्रसन्न करने वालों के सदृश केवल दिखावटी रूप से नहीं, वरन प्रभु का भय मानते हुए हृदय की सच्चाई से उनकी सब बातों में आज्ञा मानो, जो पृथ्वी पर तुम्हारे स्वामी हैं। जो कुछ तुम करते हो उस कार्य को मनुष्य का नहीं वरन प्रभु का समझकर तन मन से करो। Verse 23 very clearly says, whatever your task, work heartily as serving the Lord and not men. 23 वचन बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ कहता है, जो कुछ तुम करते हो उस कार्य को मनुष्य का नहीं वरन प्रभु का समझकर तन मन से करो। So the fifth lesson for us this morning is lend a hand without looking for applause. और पांचवा शिक्षण जो हम वही सीखते हैं कि इस तरह से मदद करिए कि कोई आपका सराहना करे परंतु परमेश्वर। So the 5 things that we looked at this morning. तो 5 बातें जो आज हमने सीखा है। First of all, that Jesus came to serve. सबसे पहली बात कि पर यीशु मसीह खुद हमें हमारी सेवा करने आया। And the lesson for us is that we should be those who will serve others because of what Jesus did for us. तो हमारे लिए यही हम सीखते हैं कि हम वैसे ही बनना चाहिए जिस तरह से यीशु मसीह ने किया है, हमें भी दूसरों की सेवा करना है। Secondly, we looked at the attitudes of giving to the poor. और दूसरी बात हमने जो देखा है गरीबों को या देना, जो कि मनोवृत्ति गरीबों को देने का है। And so the lesson for us is that we should have a good attitude
when we are helping others. और हमारी मनोवृत्ति भी वैसा ही होना चाहिए जब हम दूसरों को मदद करते हैं। Thirdly, we saw that we need to use what we have. और तीसरी बात हमने यही सीखा है, हमें उसी बात का उपयोग करना चाहिए जो हमारे पास है। And the lesson there is that use whatever you have when you are helping others. और शिक्षा हमारे पास वही है, हमारे हाथ में जो कुछ भी प्रभु ने दिया है उसी का उपयोग हम दूसरों की मदद के लिए करें। Fourthly, we said ask God what you need. और चौथी बात हमने यही सीखा है कि हम परमेश्वर से मांगे जिसकी हमें जरूरत है। And that's the lesson for us, that we need to ask God so that we will be able to give and help others. और हमारे लिए यही शिक्षा है कि हम परमेश्वर से मांगे ताकि हम परमेश्वर हमें दे, हम दूसरों को दे सके। And finally, we said give in secret. और आखिरी में हम यही सीखते हैं जो कुछ भी हमें देना है वो गुप्त रूप से देना है। And the lesson for us there is when you are helping others, don't look for men's applause, but look to God. और हमारी शिक्षा यही है, जब हम दूसरों की मदद करते हैं उसके लिए किसी संसार के व्यक्ति का सराहना का अपेक्षा आप ना करें, पर परमेश्वर की सराहना का अपेक्षा करें। Because when you give in secret, your Father who sees in secret will reward you. क्योंकि जब आप गुप्त रूप से देते हैं तो आपके पिता जो गुप्त है मैं आपको देखता है, आपका प्रतिफल वो जरूर देगा। The worship team is going to lead us with a song. आराधना दल आएंगे और एक गीत से हमारे अगुवाई करेंगे। And after that we are going to pray. और उसके बाद हम प्रार्थना करके But I want you to prepare your hearts during this time when you sing this song. और उसके पहले मैं चाहता हूँ कि आप अपने हृदय की तैयारी करें, So that you will be of use in the world that we are living in. और ताकि आप और मैं इस संसार में रहते हुए परमेश्वर के लिए अपना जीवन का उपयोग कर सकें। जय मसीह। फिर से सभी को जय मसीह। जैसा हम प्रभु का वचन सुने हैं और जैसा पास्टर जी ने कहा था कि हम देने वाली क्रिस्ती बने। We should be a Christian who gives to people, who gives, who spends for the glory of the Lord. तो क्यों ना हम जैसे हम गीत गाते हैं, आए हैं तेरे चरणों में, क्यों ना अपना भेंट हम प्रभु को दे, उसकी महिमा के लिए दे। क्यों ना एक साथ मिलकर हम इस गीत के द्वारा उस महान प्रभु की हम आराधना हम करें एक साथ मिलकर। Let's bow our heads in prayer. आइए हम अपने सरों को झुकाए प्रार्थना के लिए। Our Father God, we thank you that you are a very good God. पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते कि आप बहुत अच्छे भले परमेश्वर हैं। And you kept us in this world for a purpose. आप हमें इस धरती पर रखा है ताकि आपका एक उद्देश्य है। And we want to pray that you would use us when we are in this earth. और हमारी यही प्रार्थना है आज, ताकि आप हमारा उपयोग करें। And use us as lights in this world. आप हमारा उपयोग
एक इस संसार में रहते हुए एक रोशनी के समान करें। We have the model that Jesus, you came to die and to serve for us. आप यीशु मसीह आप इस धरती पर आए ताकि हमारे सेवा करें और अपना जीवन का बलिदान किया। Help us, Lord, to be able to serve others because of what you did for us. होने दीजिए प्रभु हम दूसरों की उसी तरह से सेवा कर सके जिस तरह से आपने हमें सिखाया है। Lord, give us a good attitude that you would be willing to be of use to others. प्रभु हमें ऐसा एक मनोवृत्ति दीजिए ताकि हम दूसरों की मदद के लिए अपना हाथ बढ़ा सकें। Lord, you call us to use whatever we have. प्रभु आप हमें बुलाया है जो कुछ हमारे पास है उसका हम उपयोग कर सकें। Help us, Lord, with whatever we have to serve others. होने दीजिए जो कुछ हमारे पास है उसके द्वारा हम दूसरों की मदद कर सकें। And Lord, whenever we need something, that we may call out to you and you would help us to continue to serve others. प्रभु जी अगर कुछ हमें जरूरत है आपका तब हम आपसे मांगे ताकि हम दूसरों की मदद भी कर सकें। And help us, Lord, to do whatever we do in secret. होने दीजिए प्रभु हम जो कुछ भी करें वो गुप्त रूप से करें। We don't do it to show in front of people. हम वो न करें ताकि दूसरों को दिखाने के लिए मनुष्य के सामने सराहना के लिए। Because your word says that if we do to show people, then we will have no reward. क्योंकि आपका वचन हमें सिखाता है क्योंकि अगर हम मनुष्य को दिखाने के लिए करते हैं तो हमारा प्रतिफल नहीं होगा। So help us, Lord, to give in secret. होने दीजिए प्रभु हम गुप्त रूप से दे सकें So that on that great day you will reward us. ताकि उस दिन आप हमारे प्रतिफल जरूर देंगे। So we commit all of us who have our heads bowed at this particular हम time. सबको आपके हाथों में देते हैं जो आज सर झुकाए हुए हैं। And help us, Lord, to be able to serve others. होने दीजिए प्रभु हम सब दूसरों की एक मदद कर सकें। Help us, Lord, to be useful in the world where you kept us. होने दीजिए इस धरती पर रहते हुए हम एक दूसरे की मदद बन सके। Lord, you take us and you use us. प्रभु जी आप हमारे जीवन को लीजिए और हमारे जीवन का उपयोग करें। Thank you for your word this morning. धन्यवाद देते आपके वचन के लिए। Thank you for speaking to us this morning. धन्यवाद देते आप हमसे बातचीत करने के लिए Continue to speak to us and lead us how we can serve you. और आप हमसे बातचीत करते रहिए ताकि किस तरह से हम एक दूसरे की सेवा कर सकें। We commit ourselves into your hands. हम अपने आप को आपके हाथों में देते हैं। And we pray, Lord, that you would bless us and use us. हम यही प्रार्थना करते हैं आप हमारे उपयोग करिए हमें आशीष दीजिए ताकि आप हमारे जीवन आपके लिए उपयोग हो सके। We pray all this in Jesus' name. ये सब कुछ हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। God bless you and God keep you. प्रभु आपको आशीष दे और आपको आपकी सुरक्षा करे। And God use you wherever He has placed प्रभु you. आपको आपका उपयोग करे जहाँ कहीं उन्होंने आपको रखा है। God be with you through this week. परमेश्वर आपके साथ रहे इस सारे हफ्ते में। Amen. आमीन।